Hello students, in the last lecture we discussed about preparation of alkene. Now today we discuss about chemical properties. Chemical properties of alkene. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन. टेक्स्ट में रिएक्शन दिए है, लाइक देयर 6 और 7 रिएक्शन दिए है, उसमें 5 रिएक्शन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 12th. ओके, नाउ द फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी सिंपल, दैट इज हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन मीन्स व्हाट? You have to add hydrogen. And we know alkene is unsaturated hydrocarbon. It means double bond already present. So if you add hydrogen, then what happen? Double bond convert into single bond. And we have saturated hydrocarbon, that is alkane. So simple reaction, CH2 double bond CH2. Here alkene as a reactant. This is chemical property, okay? Plus H2. Again hydrogen, that is gas. It does not have its own surface. So depend on metal like Pt. You can use Pt, Pd or Ni. Ni here you have to use Raney nickel. Raney nickel जो है that is a active form of nickel. Okay, जिससे इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है. So finally we have CH3 and that is ethane. Clear? Another reaction, simple reaction, that is halogenation. Halogenation. For example, CH2 double bond CH2 plus Br2. You have to add bromine in which medium? That is CCl4. So addition reaction take place. Addition means just add, no substitution. Clear? हाँ. तो यहाँ पे दो Br है तो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे and we have CH2Br single bond CH2Br. And this reaction is useful in laboratory to identify whether double bond present in compound or not. Okay? और ये रिएक्शन से आपको पता चल जाता है ब्रोमीन जो है दैट इज इनिशियली हैविंग रेडिश ब्राउन कलर, ब्रोमीन. एंड इफ यू ऐड ब्रोमीन इन अननोन कंपाउंड लाइक दिस, okay, so chemical reaction take place and finally we have this product and this is colorless. It means reaction occurs. Which reaction? Addition. And addition reaction occurs, it means compound must be contain double bond. So this reaction is very very useful in laboratory for analysis purpose. Keep it in mind. Clear? Now the third and very very important reaction, that is hydrohalogenation. Hydrohalogenation. Hydrohalogenation means what? You have to add hydrogen as well as halogen. मतलब दोनों separately add नहीं करने हैं. You have to choose compound which contain hydrogen as well as halogen. It means this is like addition of HX. In this case, you have to add only halogen. Only hydrogen. In that case, only halogen. In that case, both. And both present in this compound HX. Normally, as a HX, you have to take HI, HBr, HCl, HF. Okay? लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर HBr के बेस पे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. Okay? And this reaction is very important. So first of all, start with ethene. So ethene CH2 double bond CH2. For example, HBr. Okay. Now this is a symmetrical alkene.
सिमेट्रिकल मीन्स डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन है and both carbon having same number of hydrogen, that is symmetrical alkene. Here again addition reaction take place. Now see H and Br, for example H यहाँ पे अटैच हुआ तो Br यहाँ पे अटैच हुआ. कोई बोलेगा नहीं सर मुझे H यहाँ पे अटैच करना है, Br यहाँ पे अटैच करना है, no issue, product is same. So there is no question regarding this reaction CH3 CH2Br, that is bromoethane, and this is a symmetrical alkene. Clear? Okay. Now what about unsymmetrical alkene? Unsymmetrical alkene means next member, that is propene, and propene means there are 3 carbon. Suppose here double bond, here single bond, CH3 CH double bond CH2 plus HBr. Now in that case there are 2 possibilities. One, if H attach here, then we are here. If H attach here, then we are here. So there are 2 possibility of product and both are different. Okay. So first of all we have to write possible product. So first one product, that is CH3 CH, here Br, then CH3. तो Br को यहाँ पे अटैच किया और H को यहाँ पे, and this product is known as 2-bromo. This is halogen. So prefix 1, 2, 3, 2-bromopropane. 2-bromopropane. Now another possible product, if you attach H here, then Br here. CH3 CH2 CH2 Br, and that is 1-bromopropane. So this is our theoretical analysis. मतलब अभी हम क्लास में बैठे हैं, लैब में नहीं है. क्लियर? तो अभी हम क्लास में बैठे हैं और क्लास में बैठ के हमने एनालिसिस किया फॉर दिस रिएक्शन. ओके, सो देयर आर 2 पॉसिबल प्रोडक्ट इन दिस गिवन रिएक्शन. बाद में हम कंफर्मेशन के लिए कहां गए? केमिस्ट्री की लैब में. और लैब में हमने जब एनालिसिस किया, ये पूरे रिएक्शन को हमने स्टडी किया, एंड आफ्टर एनालिसिस we found that 2-bromopropane, that is major product. 2-bromopropane, that is major product. It means amount is more than 90%. Why? So conclusion क्या निकला? ये जो HBr है उसमें Br, that is a highly electronegative element. So in that case highly electronegative element attach with those carbon having less number of hydrogen, and that rule is known as Markovnikov rule. This is Markovnikov rule. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्को that is very popular in organic chemistry. Keep it in mind. Okay, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रही है for this particular reaction, that is 2-bromopropane, and this product follow which rule? This one, Markovnikov rule. And according to this rule, electronegative elements attach with carbon, those carbon having less number of hydrogen. Now how it happened, and for that you must have its mechanism. So in our textbook mechanism is also given, and that is very interesting. Okay, so this question is very important. Now for MCQ purpose you have to just remember product, but now see what is the mechanism. और ऐसा एक mechanism हमने alkane में पढ़ा था. Clear? Halogenation, chlorination का पूरा डिटेल में पढ़ा था. और मैकेनिज्म जब पढ़ते हो तो फिशन पिक्चर में आता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशन, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ओके, बॉटल में याद रखना, बॉटल जो है वेसल,
उसमें दो टाइप के मोलिक्यूल है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज वेसल which contain CH3 CH double bond CH2, another is HBr like this. Okay, keep it in mind. अब पूरा रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है. एंड फाइनली वी हैव 2-bromopropane. Now this is a mechanism. Mechanism is very important. So in this reaction, mechanism based on heterolytic fission. Mechanism based on heterolytic fission. Now what is heterolytic fission? You well know about that. So the first step, अब आपके पास यहाँ पे दो मोलेक्यूल है, one that is propane and another that is HBr. Clear? So सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी, that is important. So first step, that is heterolytic fission occur in HBr, and we know there is a more difference in electronegativity between these two. It means this bond is polar bond. So after fission from here, and that is heterolytic fission. So hydrogen convert into H plus and Br convert into Br minus. Okay? मतलब सबसे पहले ये जो HBr है उसमें फिशन हुआ, and we have two species, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन. अब आगे मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो मॉलिक्यूल है, अब एक में हेटेरोलिटिक फिशन हुआ, इट मींस प्लस माइनस, तो सेकंड में भी कौन सा फिशन होना चाहिए, वन टाइप ऑफ हेटेरोलिटिक फिशन, क्योंकि ए रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को इंड्यूस करेगा. फॉर विच फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन. नाउ सेकंड स्टेप, वी हैव प्रोपेन CH3 CH double bond CH2. So here for one type of heterolytic fission, तो यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन पाई के दो इलेक्ट्रॉन वो किसी एक साइड पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा हम मानेंगे. और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, दो पॉसिबिलिटी. क्लियर? ओके. तो दोनों पॉसिबिलिटी जो है उसको हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटी. यस. सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हियर, एक कार्बन के ऊपर आ रहे हैं, इट मींस CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2. अभी दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पाई के दो इलेक्ट्रॉन, सो दिस कार्बन बिकम्स नेगेटिव एंड दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, प्लस माइनस. ओके. अनदर पॉसिबिलिटी, मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं, so CH3 CH, this is negative and this one is positive. तो ऐसी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओके. अब ये दो स्पीसीज है H प्लस और Br माइनस, उसमें सबसे पहले H प्लस की एंट्री होगी, प्लस H प्लस, दोनों में लिख रहा हूं मैं, प्लस H प्लस. If this species form, suppose, so H plus attached with this carbon, it means negative. So we have CH3 CH plus CH3. Clear? H यहाँ पर अटैच हो गया, so CH3, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन H plus के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन ही दे देगा, तो यहाँ से नेगेटिव चला जाएगा और पॉजिटिव तो रहेगा. ओके. Now suppose this H plus combined with this carbon, then we have CH3 CH2 CH2 plus. So there are two possibilities. Okay, by this way. So we have either this or this, and these two species are known as carbocation. These two are known as carbocation, and in previous chapter we already discussed stability order of carbocation
and that is 3 degree, 2 degree and 1 degree. Now tell me which carbocation is more stable compared to other. So C plus attached with 2 carbon or 2 R, it means this one is 2 degree carbocation and this one is 1 degree carbocation. It means ये जो प्रोपीन है that will give 2 carbocation, but which one is more stable? 2 degree. ठीक है, तो यहां से 2 डिग्री को टारगेट में लेना है और ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन वो ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल है तो अभी कौन रह गया हमारा? ये Br माइनस. तो Br माइनस प्रीफर किसको करेगा? जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है. तो Br माइनस जो है वो वहां पे अटैच हो जाएगा इसके साथ क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. सो फाइनली वी हैव CH3 CH Br CH3 and this is 2 bromopropane. 2 bromopropane मतलब सबसे पहले यहाँ से H प्लस और Br माइनस, यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन मिलेगा? आफ्टर एडिशन ऑफ H प्लस. मान लो कि इसमें H प्लस ऐड हो ही गया है, HBr में फिशन हो गया H प्लस और Br माइनस और इसका भी H प्लस है, इसके साथ अटैच हो गया और फाइनली वी हैव इसमें से आपको कार्बोकैटायन कौन सा मिला? 2 डिग्री. ये 2 डिग्री के साथ अटैच कौन होगा? वापस इसका Br माइनस अटैच हो गया और Br माइनस तो आपको प्रोडक्ट बाहर आ गया. फिर से इसमें फिशन होगा, सेम प्रोसेस प्रोडक्ट बाहर आ गई, सेम प्रोसेस प्रोडक्ट बाहर आ गई, सेम प्रोसेस ऐसे प्रोडक्ट बाहर आ रही है कंटिन्यूअस. एंड दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर मार्को-निको रूल. तो मार्को ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको प्रूव ही करना था. व्हाई 2 bromopropane is major product and this reaction follow this way and this is mechanism. क्लियर? बहुत सिंपल है, 3 ही स्टेप है. HBr में कौन सा फिशन? हेटेरोरेडिक फिशन दे दो. इसमें भी कौन सा फिशन दिखा दो? लाइक हेटेरोरेडिक और H प्लस वहां पे अटैच कर दो तो आपको 2 कार्बोकैटायन मिलेंगे. ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री है तो 2 डिग्री के साथ Br माइनस अटैच हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. नाउ अनदर रिएक्शन. अब ये तो साइंस है, ठीक है. अब बहुत लोग डिफरेंट बेस पे स्टडी करते हैं. तो मान लो कि एक स्टडी ऐसा होगा, फिर से कोई साइंटिस्ट होगा, उसने प्रोपीन ही लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr ही ऐड किया, लेकिन जो कंडीशन थी दैट इज डिफरेंट. एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ one of the important compound in organic chemistry, that is benzoyl peroxide, and its formula is C6H5CO twice O2. This is benzoyl peroxide. Okay, so in that case again 2 possibility like previous one bromo and 2 same reaction. Again 2 possibility, 1 bromo and 2 bromo, but in that case CH3 CH2 CH2Br, that is major product. 1 bromopropane instead of 2 bromopropane. Now this reaction that is totally opposed regarding Marco-Nico rule. मतलब Marco-Nico rule है, उसका जो रिजल्ट था उससे टोटली ऑपोजिट निकला है. तो अकॉर्डिंग टू मार्को क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे अटैच होता है? किस कार्बन के साथ? जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्को. लेकिन इफ यू कंसीडर दिस प्रोडक्ट दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट, इट मींस व्हाट? Br कहां पे अटैच हुआ? दोस कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, and this result that is totally opposite to Marco-Nico. It means this reaction, this process, product that is opposite to Marco. Therefore, this rule is known as anti-Marco. Yes, anti-Marco-Nico rule. अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अगेन मैकेनिज्म. ओके, तो इसमें ये जो मैकेनिज्म है
इसमें भी वेसल होगी। वेसल में यहाँ पे कौन होगा, प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद यहाँ पे है HBr भी है और साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड भी है, O2 ट्वाइस O2 इस अंदर। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, प्रोपीन, HBr, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल। अब इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड का रोल क्या है वो हमें देखना है। ओके, तो इसका भी यहाँ पे मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। ओके, एंड दिस मैकेनिज्म follow which fission, that is homolytic fission. Homolytic fission, it means free radicals. ये दो वर्ड क्लियर होने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, होमोलिटिक फिशन एंड हेटेरोलिटिक फिशन। अब देखते हैं इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म का मीनिंग होता है यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप्स इन्वॉल्विंग होल प्रोसेस, दैट इज मैकेनिज्म। मैंने आगे भी बताया था कि आप घर से ट्यूशन आ रहे हो, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आप बोलोगे हम इतने बजे घर से यहाँ बाहर निकले, बाद में इतना 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 ऐसे करके करके हम ट्यूशन में आ गए। ठीक है, दैट इज मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक में भी ऐसे कुछ रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना होता है, नॉट ऑल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो हमें मैकेनिज्म थ्रू पढ़ना है, जिससे कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं, जो हमने बेसिक ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, वो क्लियर होते हैं। अदरवाइज जीओसी का कोई रोल है ही नहीं। ऑर्गेनिक दो वेज पे पढ़ना होता है, विथ मैकेनिज्म, विदाउट मैकेनिज्म। विथ मैकेनिज्म पढ़ना है सो यू मस्ट अवेयर अबाउट जीओसी, इफेक्ट क्या है, एफिशिएंट क्या है, वो पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। और विदाउट मैकेनिज्म पढ़ना है तो भी सिंपल है, बस ये दोनों को कंबाइन कर दो, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज फिनिश, और वो ऑर्गेनिक इजी हो जाता है। बात समझ आ रही है? हम जब पढ़ते थे तो विदाउट मैकेनिज्म था, उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस थे, लेकिन विदाउट मैकेनिज्म था, तो हम बस रिएक्शन ही पढ़ते थे ऑर्गेनिक में। अभी नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन मैकेनिज्म डाल दिया है बिकॉज ऑफ जेडबल इनिट। इसीलिए जेडबल इनिट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऑर्गेनिक टफ हो जाता है, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी इजी। ओके, लेकिन मेरी एडवाइस है पहले आपको विदाउट मैकेनिज्म परफेक्ट होना पड़ेगा, बाद में विद मैकेनिज्म भी जा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ थ्योरी है जिसमें मैकेनिज्म दिया है, तो आपको बीच बीच में पता होना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो होमोलिटिक फिशन के बेस पे है, और इसमें टोटल 5 स्टेप्स इंक्लूड है। तो वन बाय वन हम चेक करेंगे। पैरेलल ये जो वेसल है वहां पे भी आपको फोकस करना है, तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, यू हैव टू कंसीडर बल्क, सिंगल मॉलिक्यूल पे आप सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले जो बेंजोइल पेरोक्साइड है उसके बारे में हम स्टार्ट रिएक्शन वहां से होता है, वो इनिशिएटर है, एक्चुअली रिएक्शन को स्टार्ट वो करवाता है। ओके, तो C6 इसकी फॉर्मूला C6H5 दैट इज फिनाइल, C डबल बॉन्ड O, पेरोक्साइड मींस O डबल बॉन्ड O, अगेन कीटोन ग्रुप, एंड फाइनली C6H5। C6H5CO ट्वाइस, ये दो है और बीच में O2 भी है, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज पेरोक्साइड। क्लियर? तो सबसे पहले आपको पता है रिएक्शन यहां से स्टार्ट होता है। नाउ these two oxygen are same electronegativity, so this bond is you can say non-polar। तो फर्स्ट फिशन यहां से होगा, सेंटर से होगा, और जब सेंटर से फिशन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास चले जाएंगे। सो फाइनली ये दोनों देखो सेम है, ए पार्ट देखो आप और ए पार्ट, both are same। Clear? So you have to write like this, 2 moles, yes, 2 moles C6H5C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास आपको पता है ऑलरेडी उसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ठीक है, यहां से आया, यस, एंड दिस इज फ्री रेडिकल। क्लियर? ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेप देखो, अभी प्रोपीन इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, HBr भी इन्वॉल्व नहीं, अभी ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है। नाउ अगेन दिस 2 मोल फर्दर अंडरगोज होमोलिटिक फिशन। अब नेक्स्ट स्टेप में फिशन कहां से हो रहा है? तो नेक्स्ट स्टेप में फिशन फिर से यहां से हो रहा है, और वो भी होमोलिटिक फिशन ही है,
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ ए पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज गैस, और वो तो कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में गया। और ए जो है दैट इज 2 मोल C6H5 डॉट, एंड दिस वन इज नोन एज फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल मतलब पहले जो हमारे 2 स्टेप है दैट बिलोंग्स टू बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, तो बेंजोइल पेरोक्साइड की जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आपको फिशन करवाना है, होमोलिटिक फिशन। सो वी हैव 2 सेम स्पीसीज लाइक दिस, क्लियर। नाउ फर्दर फिशन टेक प्लेस हियर फ्रॉम हियर, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और वो CO2 यहाँ से निकल गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे है वो इसके पास रहेगा ना, एंड दैट इज डॉट, दैट इज फिनाइल डॉट। तो सबसे पहले हमारा जो बेंजोइल पेरोक्साइड है दैट गिव्स फिनाइल डॉट, दिस वन, और ए फिनाइल डॉट जो है, ए फिनाइल डॉट इसके पास आएगा C6H5 डॉट। अब फिनाइल डॉट जो है नंबर 3, सपोज इसमें से एक ले रहा हूं मैं C6H5 डॉट, यस, सो 1 फिनाइल डॉट। अब फिनाइल डॉट क्या, वो फ्री रेडिकल है, तो सामने वाले को भी वो इंड्यूस करेगा, फॉर विच फिशन, सिंपली होमोलिटिक फिशन। तो यहाँ पे HBr है। अब थियोरेटिकली HBr में कौन सा फिशन होना चाहिए, हेटेरोलिटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सामने फ्री रेडिकल है, और एक फ्री रेडिकल HBr को इंड्यूस करेगा, फॉर विच फिशन, दैट इज होमोलिटिक फिशन। और इसके लिए क्या होगा देखो, तो यहां से फिशन होगा H डॉट और H डॉट और Br डॉट, सो फाइनली वी हैव C6H6 प्लस Br डॉट, यस, Br डॉट। तो आपको मिलेगा Br डॉट, और यहां से Br डॉट आगे जाएगा, यस। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पे फिशन हुआ, फिशन यहाँ पे हुआ सबसे पहले, 2 स्टेप उसके हो गए, वहां से फिनाइल डॉट मिला, ए फिनाइल डॉट किसके पास गया, HBr के पास गया, HBr से आपको क्या मिला, बेंजीन निकल गया, बेंजीन गया, और आपको मिला Br डॉट। अब ये Br डॉट जाएगा किसके पास, प्रोपीन के पास। अब देखो क्या हो रहा है, ये 3 स्टेप हो गए आपके, ओके। अब प्रोपीन के पास हो जाएगा, तो प्रोपीन में भी कौन सा फिशन होगा, दैट इज ऑल्सो होमोलिटिक फिशन, प्रोपीन में। नंबर 4, तो अब आपका जो प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, देखो कैसे 2 पॉसिबिलिटी ले रहा हूं। सबसे पहले अब होमोलिटिक फिशन में पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक इधर और एक इधर, तो मैं 2 बार लिख रहा हूं CH3CH डॉट CH2 डॉट, सेम वे CH3CH डॉट CH2 डॉट, दो बार लिखा मैंने, क्लियर, क्योंकि मुझे 2 पॉसिबिलिटी दिखानी है। अब देखो Br डॉट यहाँ पे अटैच हुआ और Br डॉट यहाँ पे अटैच हुआ, अब क्या होगा, सपोज Br डॉट यहाँ पे अटैच हुआ सेंटर में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे CH3CH Br CH2 डॉट, ओके, और यहाँ पे अटैच हुआ फॉर एग्जांपल, तो CH3CH डॉट CH2 यार ऐसे होगा, ठीक है। नाउ टेल मी, ये 2 फ्री रेडिकल आ गए, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, ए सी डॉट के साथ एक ही कार्बन है और इसके साथ 2 कार्बन है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो ये जो है वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री है, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, दैट इज 2 डिग्री। तो इसका मीनिंग हुआ 4 स्टेप इसको फॉलो करना है, यस, ये आपका 4 स्टेप है, ए प्रोसेस हो रही है 4 स्टेप में। तो सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड में से क्या मिला, फिनाइल डॉट, नंबर 1, फिनाइल डॉट से क्या मिला, Br डॉट, Br डॉट प्रोपीन के पास गया, याद रखना, तो प्रोपीन ने उसको क्या दिया, ए दिया, CH3 CH डॉट CH2 Br, ऐसे, ओके। अब ये जो हमारा 5th स्टेप है उसमें ये आगे बढ़ेगा CH डॉट
CH2Br प्लस, अब देखो क्या होगा, अब ए किसके पास जाएगा, तो यहाँ पे कौन है, अब यहाँ पे HBr है कि नहीं, तो प्लस फिर से HBr का एक दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा, HBr में कौन सा फिशन, से होमोलिटिक फिशन, और AH डॉट यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br प्लस Br डॉट, और ABr डॉट जो है वो वापस स्टेप नंबर 4 में इन्वॉल्व होगा वापस। ये पूरा चेन रिएक्शन है। सबसे पहले देख लो एक बार फिर से, यहां से फिनाइल डॉट इसके पास गया, HBr के पास गया, HBr में से फर्स्ट स्टेप में Br डॉट जो निकला वो प्रोपीन के पास गया, प्रोपीन में से निकला ये रहा 2 डिग्री, और एक इसके पास गया वापस HBr के पास गया, HBr जो है उसमें से H यूज हो गया यहाँ पे, तो निकला कौन, Br डॉट, और ABr डॉट जो निकलता है वो किसके पास जाता है वापस, प्रोपीन के पास। अब बेंजीन पेरोक्साइड का रोल खत्म हो गया, वो रिएक्शन एक बार स्टार्ट करवा देता है, एक डायरेक्शन दे देता है, फिर इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो Br डॉट यहाँ से जो निकला वो वापस प्रोपीन के पास जाएगा, प्रोपीन है उसमें से 2 डिग्री निकलेगा जैसे निकला, ओके, 2 डिग्री जाएगा वापस HBr के पास, वहां से प्रोडक्ट निकल जाएगी, Br डॉट जाएगा प्रोपीन के पास, प्रोपीन में से 2 डिग्री वापस HBr के पास, वहां से प्रोडक्ट निकलेगी वापस HBr, कंटिन्यूअस फोर्थ और फिफ्थ स्टेप एक कंटिन्यूअस क्या होता है, रिपीट होता है, कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता है, एंड बाय दिस वे वी हैव 1 bromopropane instead of 2 bromopropane, and this is very important chemical reaction, clear। तो इस बेस पे हमें एंटी मार्क को पढ़ना है, तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, and that is also important, and that is ozonolysis, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। ozonolysis 1 2 3 4 and 5, that is ozonolysis। ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, ozonolysis। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ozonolysis मींस एडिशन ऑफ ओजोन, तो इसमें सबसे पहले इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड ओजोनाइड, और ओजोनाइड स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि दोनों बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो, CH2 और 3 ऑक्सीजन आपको ऐड करना है, लाइक दिस, वन ईयर इसको अटैच कर दो, और लाइक दिस इज लाइक हाउस, ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इन केमिस्ट्री दैट इज नोन एज ओजोनाइड, ओके, एंड फाइनली यू हैव टू ऐड जिंक in water, so removal of hydrogen peroxide H2O2, H2O 8 ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता है, अब कौन सा ऑक्सीजन है, तो A ऑक्सीजन, मतलब A ऑक्सीजन के लिए दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मतलब फाइनली बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो A ऑक्सीजन तो निकल गया किसके पास, पेरोक्साइड फॉर्म में, और ये दोनों जो कंपाउंड है वो था सेपरेट, दिस इज CH2O एक्चुअली CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, एंड दीस टू आर मीथेनॉल, एक्चुअली ये मीथेनॉल है, मीथेनॉल की फॉर्मूला क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या है CH2 डबल बॉन्ड O, सिंपल, ठीक है। बाद में इथिन के बाद प्रोपीन, प्रोपीन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन ऐड कर दिया, ए डबल बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तो CH3 CH और CH2, ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, देन जिंक H2, ए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, removal of minus H2O2, so this part is known as CH3 CH double bond O, that is ethanol, plus CH2 double bond O, that is methanol, ethanol plus methanol, clear। मतलब ओजोनोलिसिस है वो एक सिंपल रिएक्शन है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, नॉर्मली एमसीक्यू लेवल पे आप वर्क करते हो, कहीं पर भी वर्क करते हो, तो डायरेक्ट एग्जैक्टली हुआ क्या आप देखो,
मान लो कि बीच वाला जो स्टेप है दैट इज इंटरमीडिएट, तो आपको लिखना ही नहीं है, ऐसा मान लो। तो नॉर्मली ये देखो और ये देखो ओजोनोलिसिस में ए बॉन्ड कंपल्सरी आपको ब्रेक करना है कि नहीं। ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन चला गया प्रोसेस में पेरोक्साइड वाले केस में, ठीक है, बचे कितने ऑक्सीजन 2। तो आपको दिमाग क्या लगाना है, दोनों ऑक्सीजन ये 2 कार्बन के साथ अटैच कर दो विथ डबल बॉन्ड, तो वो आपकी हो जाएगी प्रोडक्ट। ओके, अब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं। मान दो कि 2-3 पॉइंट में आपको बता दूं, ओजोनोलिसिस में एग्जाम में कोई भी अल्कीन आपको दे सकता है, अल्कीन कोई भी हो। फॉर एग्जांपल मैंने चलो 4 कार्बन वाला अल्कीन लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। अब एग्जाम में JEE में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड कर सकते हैं वो लोग, O3 ऐसे लिखते हैं, O3 से क्या मिलेगा, ओजोनाइड, और यहाँ पे लिखा होगा सेकंड स्टेप में Zn with H2O। It means here you have to write direct final product। तो कैसे लिखनी है, सिंपल, ये बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दो, फिनिश हो गया कि नहीं। अब करना क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, हो गया, और दूसरा भी सेम प्रोडक्ट CH3, यहाँ से लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड O, इथेनॉल इथेनॉल, so 2 moles of ethanol, direct you can write, simple, clear। मतलब जो प्रोडक्ट मिल रही है that is aldehyde, sometimes ketone and sometimes one aldehyde one ketone। This is the characteristics of ozonolysis। okay, JEE में उल्टा भी आ सकता है। उल्टा कैसे देखो, प्रोडक्ट इज गिवन, आपको ऐसा दिया है ZnH2, प्रोडक्ट इज गिवन एंड प्रोडक्ट लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज कीटोन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H दैट इज इथेनॉल। आपको प्रोडक्ट दे दिए एंड यू हैव टू फाइंड आउट रिएक्टेंट। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या करोगे, उल्टा सोचो, थोड़ा उल्टा सोचो। जब आप ये रिएक्शन कर रहे थे तो आपने क्या किया, ए डबल बॉन्ड को यहां से ब्रेक किया और 2 ऑक्सीजन को यहां पे अटैच कर दिया, और ये आपकी प्रोडक्ट हो गई कि नहीं। अब उल्टा सोचना है, यहां से ए कैसे मिलेगा, तो ये 2 ऑक्सीजन को यहां से निकाल दो, वापस निकाल दिया, और जो 2 ऑक्सीजन को निकाला वो 2 कार्बन को अटैच करना है, यस, विथ डबल बॉन्ड। एक क्लियर होना चाहिए। तो यहां मैं लिख रहा हूं, आप देखो रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई होगा, हमें किस 2 कार्बन को कनेक्ट करना है वो पहले पता होना चाहिए, ये 2 कार्बन को, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, देखो CH3C, अब ये जो CH3 है उसको नीचे लिखना है, क्लियर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये C के साथ एक कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ, यस, और CH पे तो वापस है, so this is alkyne and you can find position of double bond also, so this is also very important chemical reaction and this is ozonolysis, clear। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो आप देख सकते हो। मार्को-निको के बेस पे एडिशन ऑफ वाटर भी है, एडिशन ऑफ वाटर मींस H2O, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, H2O मींस H प्लस OH माइनस, सिमेट्रिकल है तो रिजल्ट कोई भी आ सकता है, CH3 CH2 OH, H यहाँ पे लिया, OH यहाँ पे लिया। अनसिमेट्रिकल है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O H प्लस OH माइनस, तो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल फॉलो मार्को-निको रूल, तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे अटैच हुआ था, दोस कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, same way OH attached with this carbon and we have CH3 CH CH3 2 degree alcohol, propane 1, so this is addition of H2O। बाद में आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हो, H2SO4 means H plus and HSO4 minus,
तो HSO4 कहाँ अटैच करना है, दोस कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन और इस बेस पे एडिशन रिएक्शंस आ रहे हैं। और एक रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आपको डिटेल में पढ़ना है पॉलीमर केमिस्ट्री में, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे आपने पॉलीइथिलीन नाम सुना है कि नहीं, तो पॉलीइथिलीन कैसे बनता है, तो इथिन से बनता है। तो इथिन की फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एक इथिन हो गया, अब उसका भी पूरा मैकेनिज्म होता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। और वो भी इसको ही फॉलो करना है, किसको, होमोलिटिक फिशन को ही फॉलो करना है, मतलब डॉट वाला कॉन्सेप्ट है इसमें भी। तो इसमें भी सबसे पहले फिशन होता है, कौन सा, होमोलिटिक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इधर हो जाते हैं स्प्लिट, ओके, स्प्लिट हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा मोनोमर आएगा। तो इस बेस पे पूरी चेन बनती है, और फाइनली जो चेन बनती है उसमें रिपीटिंग यूनिट होता है। क्योंकि चेन कैसे बनेगी, जैसे इसके दूसरा मोनोमर अटैच होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ऐसे कंटिन्यूअस चेन आगे बढ़ती है। और पॉलीमर की जो फॉर्मूला होती है वो रिपीटिंग यूनिट के फॉर्म में होती है। इसको इथिलीन बोलते हैं और इसको पॉलीइथिलीन बोलते हैं। अभी इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है मैंने, एक्चुअली ये रिएक्शन आपको मैकेनिज्म थ्रू पढ़ना है, ठीक है, वो पॉलीमर केमिस्ट्री में आता है, मुझे ही पढ़ाना है, टेंशन मत लो, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ आल्कीन। पहले हाइड्रोजन ऐड किया, उसके बाद हेलोजन ऐड किया, इसके बाद दोनों ऐड किए उसमें मार्को और एंटी मार्को, दोनों याद रखना। मार्को क्या है, एंटी मार्को क्या है, विथ मैकेनिज्म। इसके बाद ओजोनोलिसिस क्या है वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल है ओजोनोलिसिस, और इंटरेस्टिंग भी है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आल्कीन के दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो, दो ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ अटैच कर दो, डबल बॉन्ड के साथ, दैट इज अ मिक्सचर। समटाइम दोनों सेम होते हैं, दोनों डिफरेंट भी होते हैं, दोनों अल्डेहाइड भी होंगे, दोनों कीटोन भी होंगे, वन अल्डेहाइड, कुछ भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट भी है तो आप अल्केन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। सो आवर अल्केन सेक्शन इज टोटली कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अल्काइन, ओके। और अल्काइन वो बहुत छोटा यूनिट है, उसमें हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी दोनों एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाएंगे डायरेक्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, यस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, ओके। थैंक यू वेरी वेरी मच।